جی آج میری سالگرہ ہے. ہاں جی 15 مئی ہے اور میں بڑی شدید ٹورس ہوں. تو میں نے کہا چلے میں خود ہی بنا دوں. صبح سے ماشاءاللہ میسیجز اور رات سے بھی آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہمارا ٹائم ڈفرینس بھی ہے. بچے میرے ابھی سو رہے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی آ رہا ہے اور خبروں والوں نے تو میرا وہ ڈھول بجایا ہے کہ آج انہوں نے 69 بہاریں دیکھ لی ہیں. اچھا شکر ہے اللہ کا میں نے دیکھ لی ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں اپنی عمر سے. اچھا یہ ایک بڑا عجیب سا فنومنا ہے. تھوڑا سا میں سیریس نوٹ پہ کہوں کہ آپ کی جو بھی عمر ہے آپ نے اس عمر میں پتہ نہیں کتنے اچھے کتنے سارے ایکسپیرینسز سے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. اٹس اے لرننگ. اور اللہ کا بڑا ہی کرم ہے کہ بہت ساری مشکلوں کے باوجود میں نے بہت کچھ اچھا دیکھا ہے. اور اگر میں ابھی اس عمر تک 69 کی ایج تک الحمدللہ رب العالمین ایک ایکٹیو لائف گزار رہی ہوں تو میں تو خوش ہوں بڑی. مجھے تو کوئی شرم نہیں آتی کہ میری کون سی کوئی فلمیں چلتی ہیں جو فیل ہو جائیں گی. زیادہ تر تو پہلے زمانوں میں تو عمر چھپاؤ رشتے آنے میں آسانی ہوگی یا جن کی فلمیں چلتی تھیں وہ چھپاتے تھے. بچے بھی چھپا لیتے تھے وہ لوگ. ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو 1 سال کا بچہ لے کے سامنے آئے تھے فیلڈ میں. تو خیر اینی وے تو اس لیے عمر کا ایک جو ہے نا لوگوں کو کانشیس ہوتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں. ایکچولی وہ ایج شیمنگ بھی بہت مسئلہ کرتی ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو. 70 سال کی ہو گئی ہو 75 سال کی ہو گئی ہو یا جو بھی ہے 60 سال کی ہو گئی ہو اس میں یہ تھوڑی کرتے وہ تھوڑی کرتے. میں نے پہلے بھی کہا کہ سول ینگ ہونی چاہیے. باڈی کا کیا ہے. اب آپ کئی جوان بچوں کو دیکھیں ایسے بیٹھی ہوتی ہیں مجھ سے بالکل ٹھس ٹھس. ان کے اندر وہ اسپرٹ ہی نہیں ہوتی. تو زندگی کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں دی ہیں اس کو خوشی سے جینا پازیٹیولی جینا ایکٹیولی جینا یہ بھی شکرانہ ہے ایک طرح کا. ہاں جی میں بالکل اس پہ پریشان نہیں ہوں کہ میری عمر کا نہ پتہ چل جائے کسی کو. کیوں نہ پتہ چل جائے. میری 9 سال کی عمر سے ٹی وی پہ آ رہی ہوں. میں اور لوگوں کی طرح جھوٹ تھوڑی بولوں گی آپ کے سامنے. اور میں کیوں بولوں. مجھے کیا فائدہ ہوگا. مطلب اس کا فائدہ بتائیں مجھے کیا ہوگا. مطلب میں ماہرہ خان کے رول لے لوں گی کیا یا ہانیہ عامر کی جگہ میں آنے لگ جاؤں گی. اللہ کا شکر ہے میں ایک رسپیکٹیبل جرنی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہوں اور اللہ مجھے صحت مند رکھے. بس یہ دعا کیا کرے. جب کوئی سڑ جائے نا مجھے دیکھ کے سڑے ہوئے ہوتے ہیں جو چند لوگ ہیں بس زیادہ نہیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے لیے دعا کرے کہ بھائی اپنے لیے کرے بلکہ کہ جس طرح یہ ایکٹیولی رہتی ہیں ہم بھی رہیں. تو بہرحال سالگرہ کا دن اب دیکھیں میں اب کیا کرتی ہوں. آج ادھر ادھر گھوم رہی ہوں. ابھی دوپہر کو میں نے ایک دوسری جگہ بائی روڈ جانا ہے. پھر میں تو انڈس کے ٹور پہ ہوں اکیلی ہوں لیکن کوئی بات نہیں آپ سب کا پیار ہے میرے ساتھ. میں دیکھتی ہوں میں ذرا باہر نکل کے کلپ بناتی ہوں. یا تو اندر بڑا باتیں بنا رہی ہیں وہ لوگ جو روم سروس والی ہیں. یا اس کمرے میں جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں. سوچ رہی تھی باہر جاؤں لیکن غلطی کیا ہو گئی کہ سامان میں مائک پیک کر دیا ہے. باہر اتنی ہوا ہے کوئی بات ہی نہیں سنائی دینی مجھے. اللہ خیر کرے. صرف یہ کتنا شور ہے کہ ہائے ٹرین تو یہاں سے بھی گزر گئی. اس میں نہ بیٹھی میں پتہ نہیں کہاں جا رہی ہوگی. میں چڑھ جاؤں تو اتروں گی کہاں. مجھے تو ابھی کچھ لوگ لینے آ رہے ہیں اگلے شہر جانے کے لیے. تو بہرحال ابھی تھوڑی دیر یہیں ویٹ کروں گی میں. مجھے لگتا ہے کہ سالگرہ کی مبارک جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ مطلب ہم سے مراد یہ کہ جو لوگ جن کی برتھ ڈے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی ماؤں کو وش کرنا چاہیے. جی جیسے میں نریمان سے کہتی ہوں یا میرا سے کہتی ہوں کہ جس دن میں آپ لوگ پیدا ہوئے تھے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے کہ میں ہی جانتی ہوں. اور وہ جو ماؤں کی تکلیف ہے بس وہ پھر بچوں کو دیکھ کے بعد میں بھول بھی جاتی ہیں. پھر اور بھی بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں لیکن اولاد اتنی پیاری چیز ہے کہ اس کے بعد آپ کو واقعی بھول جاتا ہے اور آپ اگلے بچے کی طرف چلے جاتے ہیں. پر ایکچولی آپ اگر اندازہ لگائیں جو ماں کا جو درجہ رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ 21 ہڈیاں ٹوٹنے جتنا درد ہوتا ہے جب آپ بچے کو جنم دیتے ہیں. 21 ہڈیاں ایک ساتھ ٹوٹنے جتنا درد ہوتا ہے. تو یہ دن تو ماں کے لیے بہت ان کو تحفے دینے چاہیے. میری امی تو چلی گئی دنیا سے. میں ان کو فون کر کے کہتی تھی امی جی مبارک ہو تاڑے کر تیسری کڑی ہوئی ہے. کہتی ہاں بہنا ہوئی ہے شکر ہے اللہ دا بڑی چنگی نکلی ہے. پہلے تو روئی تھی میرے ہونے پر. میں کہا امی تجھ تے رو پیسی کہ ان کی پتہ سی کی نکلے گا اگو تو تینی ہوشیار نکل آئی. لیکن بات یہی ہے کہ اگر اس کی آپ گہرائی میں جائیں مائیں جو ہیں ایکچولی دے شوڈ گیٹ دا ٹریٹ اینڈ دے شوڈ بی ٹریٹڈ فار دس ڈے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سب. اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ایسا پچھتاوا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو یا اپنے ابا کو والدین کو کسی طرح کی کوئی کمی رکھی ہو. الحمدللہ ان کو ان سے کوئی
शिकायत की थी, वो हमसे खुश गए हैं। ये बड़ी नेमत है आपकी। एक तो इंसान समझता है ना कि हाँ वो हमसे खुश ही थे, नहीं एक्चुअली वो हमसे खुश गए हैं। उनको मेरी याददाश्त में कोई ऐसी बात नहीं जो कि वो उनमें से नाराज़ गए हों। ऐसे वीरान सा ही है ये होटल की जगह पे। मैं बल्कि वहाँ गई थी ना जो मॉल में, वहाँ फिर भी थोड़ी रौनक थी। अब मैं ज़्यादा दूर जा नहीं सकती क्योंकि फिर वो आ जाएंगे लोग, फिर वो मुझे ढूंढेंगे तो मेरे पास फ़ोन नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल मौसम बहुत अच्छा है भाई, ठंड तो नहीं है, कल तो ज़रा थी, अभी दोपहर को धूप है ना इसलिए नहीं है ठंड। हाँ मज़े का है। आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है। चलो अकेले ही सही। कोई नहीं। यहाँ देखे ना डेनमार्क में बड़े मज़े की एक बात मैंने आपको बतानी थी। मेरी पैदाइश से पहले की बात है और मेरे मम्मी अब्बा कराची में रहते थे, अपार्टमेंट में रहते थे। वो था ना लॉरेंस रोड जहाँ पे गांधी गार्डन था, हाँ चिड़ियाघर, उसके आसपास कोई था। तो मैंने ये कहानी सुनी हुई, बड़ी मज़ेदार है। तो अम्मी, हमारे अब्बा अम्मी इतने सादे लोग थे, उस ज़माने में लोग भरोसा करना चाहते थे। तो डेनमार्क से कोई 2 लड़के गए हुए थे जो गोरे, पाकिस्तान घूमने। कहीं कराची में मेरे अब्बा को मिले और उनके पैसे ख़त्म हो गए थे और परेशान थे। उस ज़माने में क्या पासपोर्ट भी नहीं था, क्या था कुछ। पर मेरे फादर को आराम से अपने घर ले आए ना, ये नहीं कि भाई 2 आदमी हैं जवान, और अम्मी भी जवान जहान थी, बिल्कुल प्यारी सी, चिट्टी गोरी सी, खूबसूरत सी, नाजुक सी। लो जी उनको अपने घर में रख लिया। अच्छा उनको अपने बिना मिर्चों वाले खाने खिलाए, अम्मी के साथ बैठ के वो हांडी पकाने लगे। उन्होंने थोड़ी थोड़ी उर्दू भी सीख ली और अम्मी भी उनके साथ थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलने लगी। तो बल्कि उर्दू ज़्यादा उन्होंने सीखी, उनको बड़ा मज़ा आया। तो गर्मियों में उनको बहुत गर्मी लगती थी, तो मैंने उनकी तस्वीरें देखी हुई बचपन में कि वो निक्कर पहनी हुई ऊपर से कभी उतार ही दिया और गर्मी से मर रहे। और मतलब अब्बा ने उनको बहुत आराम से 2-2.5 महीने अपने घर रखा। उसके बाद उन्होंने ख़त भेजा अपना डेनमार्क में और अपने घर से उनके पैसे वैसे आए, जो भी आए वो चले गए। फिर मेरे अब्बा हॉलीवुड चले गए, पढ़ने भी गए। तो वापसी पे उन्होंने कहा मैं उनको मिलता हुआ जाता हूँ। मेरे फादर फिर डेनमार्क आए तो आके उन्होंने देखा वो तो कोई बहुत रिच लोगों के बच्चे थे, कोई वो नवाब शवाब टाइप थे, इतने बड़े बड़े मेंशंस में रहते थे। फिर मैंने तस्वीरें देखी उनके घर की। मेरे फादर को उन्होंने बड़ा प्यार दिया, उनकी माँ ने बड़ा, उनका बड़ा लगता था कोई लेडी डियाना टाइप उनकी माँ थी। तो मैंने कहा अच्छा, और वो देखो इतने आराम से रहे अम्मी के। और फिर बाद में ख़त लिखते थे अम्मी को, प्यारी मोदी, अम्मी का नाम महमूदा था, उनको मोदी कहते थे। तो प्यारी मोदी टूटे फूटे उसमें लिखते थे। तो कितनी मज़े की बात है, इंसानियत कितनी प्यारी चीज़ है, कितना एक प्यारा जज्बा है जिसमें आपने किसी गैर मुल्की परदेसी को अपने घर में 2-2.5 महीने रख ही लिया मतलब। और उसके बाद पता चला वो इतने बड़े लोगों के बच्चे थे, उनको एवं से नहीं थे, उसको जो भी थे उनको क्या, मेरे अब्बा को क्या पता था। वो तो जब गए तो उन्होंने कहा ओए ये तो कोई बहुत ही यहाँ के डेनमार्क के पता नहीं कौन से नवाब से के बच्चे थे और इतने बड़े बड़े आलीशान घर थे उनके। और हमारी अम्मी अब्बा का तो छोटा सा फ्लैट था बेचारों का, अब्बा गवर्नमेंट अफसर थे। तो मतलब ये है कि हमारे घर में शुक्र है, हमारी नस्लों में हमारे वालिदैन ने हमें इंसानियत बहुत सिखाई है, मतलब हमें देखने को मिली है, उसी से हमने सब सीखा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और किसी की मदद करना, चाहे वो किसी भी मुल्क से है या किसी भी मज़हब से है, वो इतना ज़रूरी है। तो एक छोटा सा ये मैं वाक़या है जो मुझे वाकई बहुत याद रहता है कि कितनी मज़े की बात है। फिर जब वहाँ पे गए तो उन्होंने, उनकी माँ ने बड़ा शुक्रिया भी अदा किया और बहुत सारे तोहफे दिए। मैं तो खैर पैदा नहीं हुई थी, मुझे क्या पता क्या क्या मिला होगा। नीलम बाजी थी और सुम्बुलापा थी, लेकिन भारत बहुत प्यारी बात है। चलें आज इतना ही, क्योंकि बाहर जा नहीं सकती, बहुत शोर है और अभी बस गाड़ी आने वाली है। मेरी सालगिरह है। आप सबका शुक्रिया, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं सेहतमंद रहूँ, अपने काम करती रहूँ और जितनी भी ज़िंदगी है मेरी वो एक बहुत पॉजिटिव रहे, लोगों के भले के लिए हो। शुक्र है मेरा, मुझे लगता है कि मेरे से लोग खुश ही हैं ज़्यादातर, मेरे दोस्त भी, मेरे घर वाले भी। मैं कोई बहुत डिफ़िकल्ट इंसान नहीं हूँ जहाँ तक मेरा ख्याल है। हर कोई वैसे अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है, मैं भी समझती हूँ। और किसी को इतना अच्छा इंसान चाहिए भी नहीं होता। हाँ ये भी होता है कभी कभी किसी को नहीं चाहिए होता। हाँ मुझे भी परसों वसीशा कह रहे थे, भैया आप इतनी आसान हैं, आप इतनी पॉजिटिव है, फलानी है, इतनी आप अच्छी हैं, सफ़र में पता चलता है। मैंने कहा हाँ, तो किसी को नहीं चाहिए होता इतना अच्छा हो, उसको कहते हैं वहाँ से ही। अपनी अपनी पसंद है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह बात होती है, मैं अगले सफ़र में मिलूँगी। खुदा हाफिज़। Happy birthday, my lovely, beautiful Bushra Iqbal Hussain.
बर्थडे है आपकी और हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि नालायकी मेरी है इसमें, क्योंकि अक्सर तो मैं ही भागा रहता हूँ, लेकिन आपका ये टूर है और आपको जो मिस कर रहा हूँ वो तो अपनी जगह है। आपके इस घर से जाते ही या मेरे कहीं काम पे दूर जाती है, आपको पता है बहुत ज़्यादा उदासी, एक यासियत, एक अंदर एक अजीब सा खलबली जिसको कहते हैं ना, उस तरह का एहसास होता है। लेकिन इस दफ़ा खुशी भी है कि अगेन आप इंडस हॉस्पिटल के फंड रेजिंग टूर पे हैं और इतना बड़ा नोबल कॉज है। मुझे पता है ये हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हालात इस वक्त जो इर्द गिर्द हैं, जो मामलात हैं, वो थोड़ी सी टेंशन है ऐसे, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया, उन क्राइसिस से हम लोग निकल गए और एक बहुत ही खूबसूरत नेशन के तौर पर हम दोबारा से दुनिया में जो है इस वक्त उभरे हैं। लेकिन फिर भी इस बर्थडे पर आपकी दूरी जाने मन काफ़ी मुझे अजीब फील हो रही है। आपको पता है ना, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो जीवन साथी होता है और एक अच्छा जीवन साथी जिसको रिश्तों का एहसास हो, जिसको उसको निभाना आता हो, वो बहुत बड़ी नेमत होता है। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल जिसको अच्छा जीवन साथी दे दे, अच्छे दोस्त दे दे गिर्द, उस पर बड़ी मेहरबानी होती है। अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल में मुझ पर ये बड़ी मेहरबानी की है। हालांकि मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं, मैं तो अक्सर जो ज़िंदगी के मामलात में आपको पता है किस तरह से रहता हूँ, कैसे भागा दौड़ा ही रहता हूँ हर वक्त। लेकिन आपने जो रूह के साथी होने का एक मुझे फ़ील दिया हुआ है, अल्लाह पाक ने जो मुझ पर मेहरबानी की हुई है, वो मैं किसी को उस तरह से बता नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये है, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, बीइंग मुस्लिम, कि जो जीवन साथी है वो सिर्फ इस दुनिया में नहीं, हमेशा का ये एक बहुत ही दायमी रिश्ता है। और अगर हसीन और जमील ऐसा प्यारा अल्लाह ताला रहम का मामला कर दे तो ये तो बड़ी मेहरबानी है। इसको जिसको कहते हैं ना 2 3 4 डबल ट्रिपल धमाल वाला सीन मैं अक्सर कहता हूँ, ये वो है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इस मोहब्बत का, उस एहसास का और उस फील का जो आपने एज लाइफ पार्टनर मुझे दिया हुआ है। आज तक कभी माथे पर शिकन नहीं आई कि मैं कई दिन, कई महीने घर से दूर रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ काम के लिए। आपने कभी आज तक मुझे ये एहसास नहीं होने दिया। और इतने स्पेशल इवेंट पे भी मेरे जैसा नालायक देखें कितनी दूर बैठा हुआ है आपसे और किस तरह हंस हंस के। प्रैक्टिकली इस वक्त कोई गिफ्ट तो नहीं मैं दे पा रहा आपको, लेकिन जाने एक चीज़ है, आप हमेशा मुझे कहती है ना कि तुम अपनी दाढ़ी को डाई किया करो, थोड़ा यंग लुक रखा करो। अब क्या करूँ, मुझे ये बाबा साहब बनने की बचपन से एक कोई है, एक शौक़ है, एक मुझे अच्छा लगता है ये वाइट हेयर। अभी भी देख नहीं रही कैसे लाइट के साथ बैठे होंगे, थोड़ा ये चमकती दमकती नज़र आए। लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ अभी, अगर मैं वैसे तो मुकरता नहीं हूँ आपको पता चीज़ों में, लेकिन सोच रहा हूँ कि आपको बर्थडे गिफ्ट दूँ और इसको एक दफ़ा डाई करके दिखा दूँ कि खिजाब लगा कर कैसा एक डब खड़ब्बा लगूंगा मज़ीद। लेकिन अगेन अल्लाह ताला आपको और इंडस हॉस्पिटल की सारी टीम को, डॉक्टर बारी साहब और मेरे प्यारे दोस्त परवेज़ भाई को, अल्लाह ताला आपको बड़ी हिम्मत दे। आप घरों से दूर इतने टेंशन के माहौल में, और स्पेशली आप तो अपनी बर्थडे पे इस दफ़ा भी दूर हैं, लेकिन ये जो नोबल कॉज है, ये जो लोगों के लिए इतना बड़ा आप लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। और थैंक यू वेरी मच कह देना, आई मिस यू कह देना, आई लव यू कह देना, ये बड़ा आसान है। मुझे थोड़ा सा आपको पता है किताबी लगता है, इसको करके दिखाना होता है प्रैक्टिकली, अपने एहसास से, अपने वजूद से, अपने आप से। तो इससे ज़्यादा बेहतरी होता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे आपकी इस मोहब्बत का, आपके इस साथ का, और अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में एक दूसरे का साथी बना के रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप पर खैर करे। Happy birthday to you, happy birthday dear Bushra, happy birthday to you। आज मेरी बुशरा की सालगिरह है, ओ लला मेरी बुशरा की सालगिरह है, लब पे दुआ है, क्या जियो जियो रे लला, जियो जियो रे लला। जियो जियो और मेरा रे। मुन्ना हुआ कितने साल का, बस ये नहीं साल का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। जैसे इसने घूम गया क्या? हाँ बस बता देती जियो सच। जियो जियो। जियो हजारों साल। Love लव यू बाजी, लव यू बुशरा बाजी। कितना सिस्टम प्रॉपर मिलता है। और हमारा भी शुक्र है भाई, बोट भी जा रही है, वो अपना शिप जा रहा है, शिप मेरे घर के आगे से भी बोट से
प्यारा सा मौसम है वैसे, ना ठंड है ना गर्मी है, बहुत अच्छा है। लो जी, मैं माल्मो आ गई हूँ, जो कि स्वीडन का एक छोटा सा शहर है। कितना डिफरेंट है ये, देखिए ना, मुझे ऐसी जगह अट्रैक्ट करती है। छोटी छोटी विंडोज़ हैं, छोटी छोटी बैल्कनीज़ हैं, कोजी सा और विंडी सा और बड़ा पीसफुल सा खूबसूरत सा शहर है। ये देखिए ना, इनका आर्किटेक्चर कितना डिफरेंट है, कुछ लंदन की तरह, इंग्लैंड की तरह। और वो कह रहे हैं कि 186 मुल्कों के लोग यहाँ रहते हैं और आबादी यहाँ पे शायद पता नहीं 2-3 लाख है। अरे हमारे तो कराची की पता नहीं कितनी करोड़ के डेढ़ है। और आबादी कम होने से फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी तरह लोग अवेल कर पाते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने भी मेरी बेइज्जती भी बनाई है। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा चले, मैं तो दोपहर को लंच नहीं करती, उन्होंने कहा कुछ तो मैं कहा चले जूस पिला दें। वो जूस पिलाने के बहाने ले गए और वहाँ जाके इतना बड़ा कोई प्लेटर ऑर्डर कर दिया। बस लोगों का प्यार मिलता है तो अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ। लेकिन वाकई बड़े मज़े का और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और होटल भी बड़ा अच्छा सा है, बड़ा डिफरेंट सा है, नहीं जैसे आमतौर पे होटल होते हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है ये। हाँ देखिए ज़रा कितना अच्छा लग रहा है और हवा चलती हुई नज़र भी आ रही है। ये सारा मुझे एंटर होते ही लगा कि वो कितना मज़े का ये, जैसे कोई पुरानी इंग्लिश फिल्मों के नहीं होते थे। और मौसम भी इतना प्यारा सा है। ओह आई लाइक इट, ये मज़े की जगह है। रुबीना मैं तुम्हें याद कर रही हूँ यहाँ पे, रुबीना को बड़ा शौक है ऐसी जगहों का। और मैंने देखा कि बाहर निकलते ही थोड़ा ऐसा है जैसे कोजी सा एक बाज़ार है। अभी तो आज नहीं, मगर कल सुबह मैं ना चुपके से जूते पहन के निकल जाऊँगी, किसी को पता ना चले। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे भी अच्छे अच्छे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बस अब ज़रा थक के लेटी हूँ और शाम को डिनर पे जाना है। जिन लोगों ने तैयारी की होती है इवेंट की, उनको थोड़ा सा मतलब ओबलाइज ही करना होता है, वो खुश होते हैं मिलके आपसे। और कल इनका फंक्शन है, आज इंशाल्लाह ताला कुछ पाकिस्तानी बहन भाइयों से मिलेंगे, तो मैंने कहा ज़रा चुप करके थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। आज मेरी सालगिरह का दिन ही गुजर गया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अभी बच्चे मेरे सो के उठ रहे हैं, नरीमान ने तो कर दिए, मीरा बच्चों को भेज के फिर से सो जाती है, तो भी उनके क्लिप मैं नहीं लगा सकती क्योंकि वो उठेंगी अपने टाइम से तो फिर करेंगी। ओके, खुदा हाफिज़।